تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ایک پورشن کو ہم نام دیتے ہیں ریسٹ, نیکسٹ ون کو ہم نام دیتے ہیں موشن. اب ان دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے ہم ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم ڈیلی لائف میں جو ہم ریسٹ اور موشن کو یوز کرتے ہیں پھر اس کی طرف آتے ہیں. پہلے اگر میں ڈیفینیشن لکھوں, اس کو میں نے ورڈ نام دیا ہوا ہے, تو میں نے یہاں پہ ریسٹ لکھ لیا ہوا ہے کہ if a body does not change its position with respect to some observer, the passage of time is called rest. مطلب کہنے کا یہی ہے کہ if a body does not change, اگر ایک باڈی چینج نہ کرے اپنا سمت کو, اپنی جگہ کو, تو اس حالات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کیا ہے, ریسٹ ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی آدمی کھڑا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس اتنا فورس نہیں ہے, اس کے پاس اتنا فورس نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اے سے لے کر پوائنٹ بی تک چل جائے, کیونکہ اس کے ساتھ فورس نہیں ہے. ایک فورس ہے جس کی وجہ سے یہ رکا ہے, جس کی وجہ سے یہ اس حالات, اس ریسٹ کو بنایا ہے کسی نے, جس چیز بھی بنائے ہوئے وہ بھی ایک فورس ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ جانے والا فورس نہیں ہے کہ یہ یہاں سے جا کے پوائنٹ بی تک چلا جائے. اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں, ریسٹ کہتے ہیں. نیکسٹ ہم موشن کی طرف آتے ہیں. ڈیفینیشن سیم ہے کہ if a body its position change its position with respect some observer with the passage of time is called motion. ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کریں. کہتا ہے کہ اگر ایک باڈی وقت کے ساتھ ساتھ اپنا پوزیشن بھی چینج کرے, اپنا حالات کو چینج کرے, اپنی سمت ڈائریکشن کو بھی چینج کرے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم موشن کہتے ہیں. یہ ایگزامپل یہاں پہ میں آپ کو ادھر دے رہا ہوں دوبارہ کہ پر ایگزامپل آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ پوائنٹ یہ ایک جگہ ہے جس جگہ پہ یہ کھڑا ہے, اب یہ ریسٹ میں ہے, اس پہ کچھ فورس لگ گیا, اس فورس کی وجہ سے یہ پوائنٹ بی تک چلا. ایک باڈی ہے جس نے اپنا پوزیشن چینج کیا, پہلے یہ بندہ پوائنٹ اے پہ کھڑا تھا, اس کی بعد the passage of time یعنی وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو گیا, پوائنٹ بی تک چل گیا. اب یہ بھی نہیں بتاتا کہ اس پہ گریویٹیشنل فورس کیا ہے, جسٹ ہم نے موشن کے بارے میں پڑھنا ہے, اس پہ ریزسٹنس کتنا ہے, اس پہ جو فورس بھی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے, صرف اتنا ہمارا سمجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ یہاں پہ پوائنٹ اے پہ ایک آدمی کھڑا تھا, کچھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہو گیا, اپنا جگہ پوائنٹ بی تک چلا گیا. اس حالات کو ہم کیا کہتے ہیں, موشن کہتے ہیں. اور موشن ریسٹ میں فرق صرف یہی ہے کہ اس پہ بھی فورس لگتا ہے اور اس پہ بھی فورس لگتا ہے. اگر اس پہ فورس نہیں ہوتا تو یہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک نہیں جاتا. یہ وہ فورس ہے جو ایک باڈی کو موشن پہ مجبور کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ وہ فورس ہے جو باڈی جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آگے نہیں جا سکتا, کیونکہ اس پہ جو فورس ہوتا ہے یہ فورس ریسٹ فورس ہوتا ہے. اس کی بعد ٹائپس آف موشن کی بات کرتے ہیں. ٹائپس آف موشن, موشن کی قسم کیا ہے؟ دیر آر 3 ٹائپس آف موشن. یہاں پہ اگر دیکھیں 3 قسم کی موشن ہمارے پاس موجود ہے. ایک کو ہم نام دیتے ہیں روٹیٹری موشن. کیا نام دیتے ہیں؟ روٹیٹری موشن. نیکسٹ ون کو ہم نام دیتے ہیں
ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेशन मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, जो भी आप कहना चाहते हो। अब पहले वाले को जो मैंने नंबर दिया हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पे डिफिनीशन के साथ। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव such that all its a particle move parallel to each other in a path, straight or curve, चाहे वो स्ट्रेट कोई बॉडी के साथ पॉइंट पार्टिकल जा रहा है या कर्व जा रहा है। स्ट्रेट को मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, यहां पे आप देखिए, ये कोई आदमी है या कोई स्टूडेंट है, यहां से जाके इधर आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखें ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ये जब यहां से जा रहा है, ये अगर देखें ये लाइन स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं फिर? स्ट्रेट, स्ट्रेट मोशन। और अगर हम यहां पे नेक्स्ट एक डिफिनेशन में लिखते हो, कर्व, कर्व क्या होता है? यही आदमी है, थोड़ा सा चेंज करता हूं इसमें, ये आदमी जाके पहले यहां इधर आया, फिर उसकी बाद सी की तरफ चला, सी पॉइंट है वहां पे चला गया। तो कर्व का क्या तरतीब होता है? कर्व हमारे पास इस तरह होता है ना, या इस तरह होना चाहिए, या मोशन इस तरह होना चाहिए, तो ये हमारे पास फिर कर्व मोशन होगा। क्योंकि और एक बात समझने की है कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मोशन और लीनियर मोशन दोनों ही एक ही है, और जो डिफरेंस है वो कर्व में। तो इस टाइप ऑफ मोशन जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? अगर आप डिफिनीशन को देखें, when each point, वो उस पॉइंट की बात करें जिस बॉडी के साथ मौजूद है, एक साथ किस चीज से पॉइंट से बना होता है, एटमो से बना होता है। अब when each point of a body move around a fixed point, around a fixed point, जो बॉडी के साथ जो पॉइंट है, जो पार्टिकल है बॉडी के साथ, जब वो हरकत करते हैं अराउंड उसकी गिर्द एक फिक्स पॉइंट पे वो अराउंड करता है, मतलब इर्द गिर्द घूमने जिसको हम लोग कह सकते हैं अराउंड अबाउट ऑफ द फिक्स एक्सिस, वो एक ही नुक्ते पे पूरा बॉडी जो है इर्द गिर्द घूमता है। अब अगर इसको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश करूं, जस्ट लाइक आप पंखा देखें, पंखे को अगर आप देखें यहाँ पे दरमियान में अगर इस तरह इसमें फर लगे होते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं रोटेटरी के, रोटेट मींस क्या होता है? गोल होता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई पेन लगे हुए हैं और इसमें फर लगे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें ये रोटेट होता है अबाउट द फिक्स एक्सिस, एक मरकज होता है उसका, एक इसका एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के तहत इस पॉइंट, इसको हम कहते हैं पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट क्या है? ये पेक्स है कि नहीं है? पेक्स अबाउट एक्सिस, ये जब रोटेट होता है एक फिक्स पॉइंट पे होता है। तो इस टाइप ऑफ मोशन चाहे वो जो भी है, लेकिन उसके अंदर कुछ क्वेश्चन और भी पाया जाता है कि अगर गाड़ी की टायर है वो घूमता है, वो तो आगे भी जाता है और साथ में जो है वो एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट हो सकता है। ऐसे भी कुछ मोशन है, लेकिन वो स्पेशल केसेस है, उसमें हम नहीं जाएंगे। जहां तक हमें समझाने की जरूरत है हम वहां तक जाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके पास जो एग्जाम्पल है, पेन की एग्जाम्पल आप ले लें, एक फिक्स पॉइंट पे वो रोटेट होता है, तो उन टाइप्स ऑफ मोशन को हम क्या कह सकते हैं? रोटेटरी मोशन कह सकते हैं। अब वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन मोशन,
दोनों ही की है कि the back and forth motion of the body over in the same path about its position of equilibrium is called vibration motion. समझने की कोशिश करें, रट्टे लगाने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे. वाइब्रेशन मोशन, एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, जस्ट लाइक मोबाइल. लेट वी हैव टू कंसीडर योर मोबाइल. आपके पास मोबाइल है, यहाँ पे मैं आपको पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ. ये कोई मोबाइल है, उसके अंदर बटन लगे हुए, किसी ने कॉल करके आपको वाइब्रेशन आता है, ठीक है. अब ये मोबाइल मेज पे पड़ा हुआ है, एक टेबल पे. उस टेबल में जब उसको फोन आ रहा है, कभी ये मोबाइल इधर जाएगा, कभी ये मोबाइल इधर जाएगा. और इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि द बॉडी ओवर द सेम पाथ अबाउट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इक्वल से बना हुआ है. ये कहता है बराबर को. जहां इस पॉइंट पे आया था उतना ही ये यहां पे भी आएगा. अब मजे की बात ये है कि जितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने यहां पे क्लियर किया था, उतना ही डिस्प्लेसमेंट आप इधर ही करेगा. और एक बेस्ट एग्जांपल और दे दूं आपको कि यहाँ पे कोई क्लैब है, इसके अंदर कोई स्प्रेड नहीं होगा, मास इधर में देख, मास. अब इस मास को मैंने आराम के साथ थोड़ा सा इधर घसीटा. जब मैंने घसीटा तो यहां से लेके ये उसकी पहले इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, जहां तक मैंने इधर इसको घसीटा था. अब मजे की बात यही है कि इसको जब मैंने घसीटा, ये कुछ वक्त के लिए बैक एंड फोर्थ. अब जब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बैक एंड फोर्थ, कभी वापस, कभी आगे, कभी वापस, कभी आगे. एक वक्त आएगा, द पैसेज ऑफ टाइम, कि वो अपनी ही हालात में दोबारा आ जाएगा. उस हालात को फिर हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम. फिर जरा आप देख ली, यहाँ पे दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वाइब्रेशन मोशन क्या होता है. वाइब्रेशन मोशन जो है एक बैक एंड फोर्थ मोशन होता है. और ये हमारे पास क्या होता है, एक बॉडी की वही पोजीशन कि हम अगर उसको थोड़ा सा भी कुछ चेंज भी करें, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा. जस्ट लाइक मैंने स्प्रेड का एग्जांपल ले दिया कि मैंने उसको घसीटा, फिर जब घसीटा फिर मैंने उसको छोड़ा, ये कुछ वक्त के लिए, मतलब बैक एंड फोर्थ, एक पॉइंट आ जाएगा कि दोबारा वो उस हालात में, रेस्ट की हालत में आ जाएगा. अब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन मोशन कहते हैं. इसकी बात और मैं थोड़ा दोहरा रहा हूं इस पूरे लेक्चर को. ये जो चैप्टर था हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, और काइनेमेटिक्स में हमने दो चीजों को डिफाइन किया था कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन, और रेस्ट और मोशन के बारे में हमने इसको डिफरेंशिएट किया. और उसके बाद रेस्ट की डेफिनेशन भी की कि डेफिनेशन ये था हमारे पास कि कोई बॉडी जगह भी तब्दील ना कर सके, अपनी जगह पे साकिन ही रहे. इस टाइप्स उसको हम क्या कह सकते हैं, इस टाइप्स ऑफ बॉडी को हम कह सकते हैं कि ये रेस्ट में मौजूद है. उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको जो मैंने 2 नंबर दिया था, उसको मैंने 2 को भी डिफाइन किया, मोशन को, कि अगर कोई बॉडी अपने जगह भी चेंज करे. सिंपल एग्जांपल है, और ये जो है क्वेश्चन में आएगा कि आप रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन देखो तो आपको सिंपली 2-3 लाइनों में आप लिख सकते हैं, बहुत इजी. तो यहाँ पे अगर आप देखिए, बॉडी है, मौजूद है, पोजीशन भी चेंज करता है, पहले इधर था, अब वो किस वक्त की बात किसी और जगह पे है, तो हम इसे कह सकते हैं. फिर मैंने एक एग्जांपल भी दिया, भाई कोई स्टूडेंट है, कोई शागिर्द है, वो यहाँ पे पॉइंट ए पे इस जगह पे था, कुछ वक्त के बाद वो यहाँ पे आ गया, और रेस्ट में ये हालात नहीं होगा. इसके पास भी फोर्स होगा, वो फोर्स जो होगा मैंने पहले बताया था कि वो फोर्स उस रुक की फोर्स होगा, और ये फोर्स जो उसमें लग जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो उसको मैंने नाम, वो भी फोर्स है, लेकिन वो फोर्स रुकने वाला नहीं है, वो मोशन वाला फोर्स होगा. डिफरेंस यही है उसमें. फिर मैंने टाइप्स ऑफ मोशन की बात की कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है. टाइप्स ऑफ मोशन मैंने 3 कैटेगरी में तकसीम कर दिया. एक को मैंने नाम
ट्रांसलेटरी मोशन दे दिया, दूसरे को मैंने रोटेटरी मोशन दे दिया, नेक्स्ट वन को मैंने वाइब्रेशन मोशन नाम दिया या वाइब्रेटिंग मोशन भी आप कह सकते हो। फिर मैंने सिंपली ये भी बता दिया कि हमारे पास अगर कोई बॉडी जो है तमाम पार्टिकल, और तमाम पार्टिकल ट्रांसलेटरी की मतलब ये है कि ये भी होगा कि आपके पास अगर एक आदमी है इधर खड़ा है, ठीक है, ये जब यहाँ पे अगर आप देखें ना, सच दैट ऑल इट्स पार्टिकल, इट्स ऑल पार्टिकल, ये नहीं होगा कि इस बॉडी से कुछ पार्टिकल इधर रह जाए और कुछ जो है ये पॉइंट बी तक चले जाए, ये नहीं होगा। क्वेश्चन समझाने की मतलब मेरा यही है कि ये बॉडी अगर जाना है तो पूरा की पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना होगा उसकी, तब उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। फिर मैंने आपको सिंपली रोटेटरी मोशन की बात की कि रोटेटरी क्या होता है। फिर मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है वो एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट अबाउट ऑफ द फिक्स एक्सिस पे रोटेट होते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको रोटेटरी मोशन कह सकते हैं। इसके और नाम भी है, इसको हम एक्सिस भी कह सकते हैं। और फिर ये भी मैंने एग्जांपल दिया, जस्ट पंखे का मैंने एग्जांपल दे दिया था कि आपके पास एक पंखा है, वो घूमता है, आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करें, जब आप बिजली लाइट ऑन करें वो घूमेगा, जब घूमेगा तो एक फिक्स पॉइंट पे वो मोशन करेगा, लेकिन ये मोशन ये ट्रांसलेट से डिफरेंट